Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So class, in our previous session, we have completed unit number 4. Okay, and today I am going to start with the next unit, that is number and logical skills. So this is the next unit that I am going to start in today's session. Okay, and the topics that we will discuss in this unit, number and logical skill, is solve the maze and riddles. So these are the two topics that we will discuss in the unit number 4. So in this unit we are having only 2 chapters, the solve the maze and riddles. So first of all I am going to start with the first topic, that is solve the maze. Solve the maze, that is given at page number 7. So all of you kindly open your books at page number 7, that is solve the maze. Okay, solve the maze, M-A-Z-E. This is the topic and this is given at page number 7. Solve the maze. So now what is given in this topic, the solve the maze? Let's find out. Okay, here it is given. Hi there, I am Noe. Let's start another fantastic year in the Quizland. Let's see if you can find your way through the maze by solving the problems given below. So here some questions are given. Okay, so they belong to the logical reasoning and some belong to the mathematical reasoning. Okay, and we need to find out the answers, and these questions that you are already doing or you have already know about it. So these are just simple questions and you need to find the answers. Okay, so just ये simple एक reasoning की questions है बेटा, nothing more than, and some are the mathematical reasoning as well. So let's start with the first one. So here they are showing the path. So it starts with here question number 1. तो देखिए वो path show करते हुए first question, then arrow को follow करते हुए we need to find the answers of each and every question. Clear? So हमें किसको follow करना है? We need to follow the arrow. चलिए, so let's begin with the first one. How many seconds are there in an hour? 1 hour में कितने seconds होते हैं? How many seconds are there in 1 hour? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, मैं आपको समझा, देखिए 1 hour is equal to 60 minutes. Okay, and 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, हमें निकालना है 1 hour में कितने seconds होते हैं. How many seconds are there? 1 hour is equal to 60 minutes. Okay, and 1 minute is equal to 60 seconds. तो minutes, अगर हम 1 hour को 60 minutes मान लें, 1 minute को 60 seconds मान लें. So अगर हम 60 minutes को 60 seconds से multiply करें, so we can get total number of hours, total number of seconds in an hour. 6 को multiply करिए 60 से, so 6 6 36 and दोनों 0 लगा दीजिए, that is 3600 seconds. So 1 hour is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds, and 1 hour is equal to how many seconds? So 1 hour is equal to 3600 seconds. 1 hour is equal to 3600 seconds. Okay, तो देखिए क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट आंसर लिखना है, हमें उसमें कैलकुलेशन शो नहीं करनी है बेटा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है how many seconds are there in an hour? So there are 3600 seconds in an hour. There are 3600 seconds in an hour. तो लिखिए 3600 seconds. So how many seconds are there in an hour? There are 3600 seconds in an hour. So the answer for the first one is 3600 seconds.
चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन. द सेकेंड इज इफ $1 is equal to ₹60, how much will a gift item of $60 cost in rupee? ओके, तो कह रहे अगर एक यूएस का डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स का $1 का कीमत है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स का $1 इंडिया में 60 रुपीज है. ओके, $1 in India is ₹60. How much will a gift item of ₹60 cost in rupees? तो $60 की कोई भी चीज इंडिया में कितने रुपीस की होगी? ओके, देखिए क्वेश्चन को समझिए. $1 is equal to ₹60. $1 is equal to ₹60. तो $60 का अगर कोई सामान है तो रुपीज में उसकी कितनी कॉस्ट होगी हमें निकालना है. सो $1 is equal to ₹60. तो $60 कितने रुपीज के इक्वल होगा? $60 multiplied by 60 rupees. So that is 3600 rupees. $1 is equal to 60 rupees. So $60 is equal to 3600 rupees. Okay. तो देखिए $1 is equal to 60 rupees and $60 is equal to rupees 3600 या 3600. तो लिखिए आंसर, सेकंड का आंसर भी लिखिए. देखिए क्वेश्चन था इफ $1 US$ is equal to ₹60, how much will a gift item of $60 cost in rupees? That is answer number 2. That is rupees 3600 या 3600. That will cost 3600. So write down the solution of question number 2. Okay. Now we will move to the third one. The third is if BGQF means dish, what does FCJN mean? Okay, तो ये थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है बेटा, इसको जरा ध्यान से समझिए. इट इज गिवन हियर इफ BGQF का मतलब है डिश, DISH. If BGQF means dish, so what is the meaning of FCJN? FCJN का क्या मतलब है? That we need to find out. तो that means जो मेथड हमने BGQF को डिश बनाया है, वैसे हमें CFJN के लिए भी एक वर्ड चूज करना है. तो देखिए BGQF को जब डिश में कैसे चेंज हुआ, देखिए 1 2 3 4, ये भी हमारे पास 4 अल्फाबेट्स हैं. 1 2 3 4, देयर ऑल्सो 4 अल्फाबेट्स. तो देखिए B और D, G चेंज हुआ I में, Q चेंज हुआ S में, F चेंज हुआ H में. कैसे हुआ लेट्स फाइंड आउट. देखिए B, अगर हम अल्फाबेट देखें जो हमारे अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, एक B के बाद C के पास D. तो दैट मीन्स अगर हम 2 अल्फाबेट्स प्लस करेंगे सो यू विल गेट D. B C D G H I. तो देखिए इसमें G में भी जब हमने 2 अल्फाबेट्स को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? I. Q R S. सो वैसे ही Q में जब हमने 2 अल्फाबेट्स को ऐड किया वी गॉट S. नेक्स्ट F G H. जब हमने 2 अल्फाबेट्स को ऐड किया तो दैट इज H. ओके, तो दैट मीन्स इन दिस वी आर एडिंग 2 अल्फाबेट्स. तो हमने नेक्स्ट 2 अल्फाबेट, जो सेकेंड अल्फाबेट है, जो भी ऊपर अल्फाबेट लिखा है उसका जो नेक्स्ट सेकेंड अल्फाबेट है वो मेंशन किया है. तो देखिए B के बाद जो नेक्स्ट सेकेंड अल्फाबेट है दैट इज D. G के बाद नेक्स्ट सेकेंड अल्फाबेट इज I, and after Q the next second alphabet is S, whereas after F the next second alphabet is H. So BGQF converted into dash like this. Now FCJN में भी हम यही मेथड फॉलो करेंगे. So what will be the next second alphabet after F? F G H. So next
सेकेंड अल्फाबेट विल बी एच. एफ के बाद जो सेकेंड नेक्स्ट अल्फाबेट होगा दैट विल बी एच. आफ्टर सी द नेक्स्ट सेकेंड अल्फाबेट विल बी सी डी ई. तो दैट मीन्स द नेक्स्ट सेकेंड अल्फाबेट क्या होगा, दैट विल बी ई. ओके, आफ्टर सी वी आर हैविंग जे. जे के बाद नेक्स्ट सेकेंड अल्फाबेट क्या होगा, जे के एल. सो द नेक्स्ट सेकेंड अल्फाबेट आफ्टर जे इज एल. नेक्स्ट एन. आफ्टर एन द नेक्स्ट सेकेंड अल्फाबेट इज पी. एम एन सॉरी एन ओ P. So the next second alphabet after N is P. So now we have converted F, C, G, N into HELP. H-E-L-P, HELP. Okay. So जैसे कि B, G, Q, F is converted into dish. F, C, J, N is equal to HELP. H-E-L-P, HELP. Okay. So अब हमें पूरा ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. क्वेश्चन में लिखा है इफ बी जी क्यू एफ मीन्स डैश व्हाट डज एफ सी जे एन मीन्स. तो आप लिखिए हेल्प. सो जस्ट राइट डाउन द आंसर ओनली, दैट इज हेल्प. H-E-L-P and write all the letters, all the alphabets in capital letter. Third one is help. H-E-L-P, that is help. Okay, moving next to the fourth one. The fourth is, if Liz is older than Tom and Eric was born after Tom, then who is the eldest of all? कहते हैं Liz जो है वो Tom के बाद पैदा हुआ. Sorry, if Liz is older than Tom, older means बड़ा, younger means छोटा, older means बड़ा. कहते हैं अगर जो Liz है वो Tom से बड़ा है and Eric was born after Tom, और जो एरिक है वो टॉम के बाद पैदा हुआ, देन हु इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल. तो उन तीनों में सबसे बड़ा कौन है. एल्डेस्ट मीन सबसे बड़ा एज वाइज. सो देखिए यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही है. द फर्स्ट इज लिज, सेकेंड इज टॉम एंड द थर्ड इज एरिक. एंड वी नीड टू फाइंड आउट दैट हु इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल. तो इन तीनों में सबसे बड़ा, एल्डेस्ट मीन सबसे बड़ा एज वाइज कौन है. सो लेट्स फाइंड आउट. So it is given if Liz is older than Tom, Liz is older than Tom. So suppose this is Liz. देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए. Liz is older than Tom. तो जो Liz है वो Tom से बड़ा है. Okay, so Tom से बड़ा कौन है, Liz. This is Liz and Liz is older than Tom. T-O-M, Tom. Liz Tom से बड़ा है. Liz is older than Tom. Second, Eric was born after Tom. और जो Eric है वो Tom के बाद पैदा हुआ. So that means Eric Tom से छोटा है, उसके बाद में पैदा हुआ. Eric was born after Tom. Okay. So that means who is the eldest of all. इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है. देखिए Liz Tom से भी बड़ा है और जो Eric है वो Tom से छोटा है. So that means Eric भी indirectly Liz से छोटा हुआ. So सबसे बड़ा कौन है, who is the eldest of all. So the Liz is the eldest of all. Liz is the eldest of all. So the answer is Liz. L-I-Z-Z, Liz. L-I-Z-Z, Liz. So Liz is the eldest of all. Moving next to the fifth one. Jenny was born on 29th February. Her birthday comes once in a dash years. तो जेनी की जो है जो जेनी का बर्थ डेट है दैट इज 29th February. So Jenny was born on 29th February and her birthday comes once in dash years. So how many years में उसका बर्थडे, कितने ईयर्स में उसका बर्थडे आता है. देखिए 20 इन जनवरी वी आर हैविंग ओनली 28 डेज इन फेब्रुवरी. तो फेब्रुवरी में हमारे 28 डेज होते हैं, बट ओनली इन लीप ईयर. सिर्फ जब लीप ईयर आता है तो उस ईयर में हमारे जो फेब्रुवरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज. वैसे फेब्रुवरी में देयर आर ओनली 28 डेज, बट ड्यूरिंग अ लीप ईयर देयर आर 29 डेज. So one more day is added in the February during the leap year. Now the question here is
अगर उसका लीप ईयर में बर्थडे आता है 29 फेब को, तो कितने सालों में उसका बर्थडे एक बार आता है? देखिए, लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, तो लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, तो वैसे ही उसका बर्थडे भी हर 4 साल में एक बार आता है। ओके, सो जेनी वॉज बोर्न ऑन 29 February, हर बर्थडे कम्स वंस इन 4 ईयर्स। तो क्योंकि 29 फरवरी को पैदा हुई है, 29 फरवरी लीप ईयर में होता है, सो दैट मीन्स उसका बर्थडे किस दिन होता है? 4 ईयर्स में एक बार आता है। सो सर बर्थडे कम्स वंस इन 4 ईयर्स, FOUR 4 ईयर्स। तो आप चाहे तो न्यूमेरिक नंबर में भी 4 लिख सकते हैं, सो दैट इज अप टू यू, विच एवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज दैट। दैट इज 4 ईयर्स। क्लियर? Next, okay, so these are the answers from 1 to 5. You can pause it here and note it down in your books. चलिए, moving next to the 6th one. The 6th is the sum of two numbers is 25. दो numbers का sum, जब हमने दो numbers को add किया, we got 25. देयर डिफरेंस इज 5, और उन दोनों को माइनस किया तो हमें मिला 5. सो व्हाट आर द टू नंबर्स? तो कौन से टू नंबर्स होंगे वो? देखिए, जब हमने कोई भी दो नंबर्स लिए, ठीक है, जिनको जब हमने ऐड किया वी गॉट 25. सो हमने 20, जब इन दोनों नंबर्स को, जो भी नंबर हमने लिए, जब इनको दोनों को ऐड किया, सो व्हेन वी एडेड टू नंबर्स वी गॉट 25 एज द आंसर. बट जब सेम उन्हीं नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, वी गॉट 5 एज द आंसर. सो व्हाट विल बी दोज नंबर्स? तो कौन से होंगे वो दो नंबर्स? देखिए, अगर हम 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 इज 25, एज इट इज 15 माइनस 10 इज 5. सो कौन से नंबर है वो दोनों? दैट इज 15 एंड 10. So the sum of two numbers is 25. Their difference is 5. What are the two numbers? That is 10 and 5. Sorry, 15. That is 10 and 15. लिखिए answer. That is 10 and 15. Moving next to the 7th one. If you take 4 oranges out of 6 from a basket, how many oranges do you have? Okay, आपके पास एक बास्केट थी, उसमें 6 ऑरेंजेस थे, आपने उसमें से 4 ऑरेंजेस ले लिए. अब आपके पास कितने ऑरेंज हैं? ओके, एक बास्केट में 6 ऑरेंज थे, जिसमें से 4 ऑरेंजेस आपने ले लिए. सो हाउ मेनी ऑरेंजेस आर यू हैविंग राइट नाउ विद यू? थिंक अबाउट इट. देखिए बेटा, आपने 4 लिए हैं, तो जनरली बात है आपके पास 4 ही होंगे. तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन ट्रिकी हो. ओके, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आपके पास हर क्वेश्चन ट्रिकी हो. ये सिंपल क्वेश्चन है. 6 में से 4 ले ली, तो आपके पास कितने हैं? 4 हैं. ओके, सो हाउ मेनी ऑरेंजेस डू यू हैव? 4 ऑरेंजेस. सो राइट डाउन, दैट इज 4 ऑरेंजेस. मूविंग टू द 8th one. Okay, what is heavier, 5.5 kg or 550 gram? तो 5.5 kg. Okay, this is 5.5 kg and this is 550 gram. इन दोनों में से कौन सा हैवी होगा? देखिए, दिस इज kg, दिस इज ग्राम. एक तो ये चीज kg बड़ी यूनिट है, ग्राम स्मॉल यूनिट है. बट अगर हम इस kg को हम ग्राम में लिखेंगे, दैट विल बी 5 kg 500 gram and this is 550 gram. So which one is heavier? 500 gram will, sorry, 5.5 kg will be gram heavier. Heavy means भारी होगा, या 550 gram heavy होगा. So generally 5.5 kg will be heavier. Okay, तो कौन heavy होगा, कौन सा भारी होगा? So question है, what is heavier, 5.5 kg or 550 gram? So the answer is 5.5 kg. Write it down. 5.5 kg. Okay, so this is the answer of the 8th one. That is 5.5 kg. Okay, beta. चलिए. So with this we have completed page number 7. That is solve the maze.
Okay, so still we are having some time, so we will move to the second topic from the same unit number. Okay, so the second topic is riddles, which is given at page number 42. So all of you now open your books at page number 42, that is riddles, and write down the today's date on it as well. Chalo. So let's do the riddles, which is given at page number 42. Okay, this is the page and the topic is riddles. RIDDLES. This is riddles. तो riddles क्या होते हैं? riddles जैसे हम कहते हैं ना पहेलियां, जो हम मोस्टली देखते हैं, पहेलियां को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं, we call it as riddles. Okay, so यहाँ पे हमारे पास कुछ पहेलियां दी हुई हैं and we need to find the answer for them. चलिए, so first is, I'm an odd number, take away one letter and I became even. What number am I? तो देखिए कहते हैं कि मैं एक odd number हूँ. Odd number means 1, 3, 5, 7, 9. So these all जो numbers 2 से divide नहीं हो सकते, they all are odd numbers. ठीक है, odd and even आपने पढ़ा है मैथ्स में. The numbers which are not divisible by 2, they are odd numbers. Okay, और जो number 2 से divisible है, they are even numbers. Correct. Now here it is given, I am an odd number, take away one letter and I became even. मैं एक odd number हूँ, मुझसे एक letter जब आप निकाल लोगे तो मैं एक क्या बन जाऊंगा? I will become even. So what number am I? तो मैं कौन सा number हूँ? जब उसमें आप मेरे में से एक letter निकाल लेंगे, I will become even. So what the number is? That is 7. अब 7 तो आपको होगी मैम odd number. देखिए हम यहाँ पे 7 के स्पेलिंग लिखेंगे, SEVEN. This is 7. Okay, 7 में से हमने एक लेटर निकाल लिया S. It became even. So the number is 7. ये बेटा पहेली है. Okay, so इनके आंसर्स ऐसे ही होंगे. So the answer for the first is 7, SEVEN. That is 7. Moving next to the second one. I'm tall, but the longer I stand, the shorter I get. What am I? तो कहते मैं लंबी हूँ. ओके, सो जो चीज अपने बारे में बता रही है कि आई एम टॉल, मैं लंबी हूँ, बट जितनी देर तक मैं खड़ी रहूंगी मैं उतनी छोटी होती जाऊंगी. सो व्हाट आई एम अ कैंडल. आई एम अ कैंडल. तो देखिए कैंडल है, लंबी होती है, बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन इसको जितनी देर तक जलाओगे वो उतनी धीरे धीरे छोटी होती जाएगी. ओके, सो आई एम टॉल बट द लॉन्गर आई स्टैंड द शॉर्टर आई गेट. व्हाट एम आई एम अ candle. So the answer for the second one is candle. CANDLE. That is candle. CANDLE. That is candle. Third one. You have to break me before you can use me. What am I? So the next thing that is giving clue about itself कि मुझे यूज करने से पहले you need to break me up. तो देखिए कोई भी चीज जब टूट जाती है हम उसको यूज नहीं कर सकते जनरली, बट इस चीज को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ब्रेक इट. ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू यूज इट. सो व्हाट इज इट? सोचिए, सोचो. दैट विल बी, अगर पीछे से आंसर नहीं देखोगे दैट विल बी मोर फनी फॉर यू, मतलब आपके लिए ज्यादा इंटरेक्टिव होगा. अगर पीछे से आंसर देख के लिख लोगे तो बेटा उसको कोई फायदा नहीं. ठीक है, सो यू हैव टू ब्रेक मी बिफोर यू कैन यूज मी. व्हाट एम आई एम एन एग. एग, अंडा. ओके, सो जब आपको अंडा यूज करना है, अगर आपको अंडे का ऑमलेट बनाना है, ओके, या बॉईल करके खाना है, तो पहले आपको उसको तोड़ना होगा तभी खा पाओगे. सो यू नीड टू ब्रेक मी बिफोर यू कैन यूज मी. सो व्हाट एम आई एम एन एग. सो द आंसर फॉर द थर्ड वन इज एग. EGG, egg. Fourth one. Okay, I am a 5-letter word. I became shorter when you add 2 numbers to my name. Okay, कहते मैं 5 words का एक letter हूँ. I am a 5-letter word. Okay, letter का मतलब alphabetical letters. Okay, so I am a 5-letter word. I became shorter. मैं और छोटा हो जाऊंगा जब आप मेरे नाम में 2 और जो वर्ड्स हैं उसको ऐड कर देंगे. तो देखिए वो कह रहा है कि आई एम अ 5-letter वर्ड, बट आप अगर मेरे नाम में 2 letters और ऐड कर दोगे तो मैं और छोटा हो जाऊंगा. सो व्हाट इज इट? अगर हम उसमें 2 ऐड करें तो उसको तो बड़ा होना चाहिए, बट वो छोटा हो रहा है. सो व्हाट इज इट?
So the number, so that word is short. The word is short. अब देखो short कैसे, SHORT, दिस इज short. ओके, अगर आप short में SHORT, दिस short में अगर आप 2 लेटर्स और ऐड कर दोगे तो ये और छोटा हो जाएगा. अगर आप इसमें शॉर्ट 2 लेटर्स E और R आपने ऐड कर दिया, शॉर्ट मीन्स छोटा, शॉर्टर मीन्स सबसे छोटा. ओके, तो आई एम अ 5 लेटर वर्ड, 1 2 3 4 5, बट आपने जब मेरे में 2 लेटर्स दैट इज E और ऐड किए तो मैं और छोटा हो गया, तो वो और शॉर्टर हो गया, और छोटा बन गया. शॉर्टर का मतलब और भी छोटा. सो दैट मीन्स द लेटर इज, सॉरी द वर्ड इज शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट. चलिए, moving next to the 5th one. The 5th is, I can run but I can't walk. I can murmur but I can't talk. I have a bed but I can't sleep. I have a mouth but I can't eat. What am I? तो देखिए, now we are talking about a thing. ठीक है, ये भाग सकती है बट ये चल नहीं सकती. ओके, ये आवाज करती है बट ये बोल नहीं सकती. ठीक है, ये एकदम कई बार शांत होती, एकदम बेड की तरह नजर आती है, बट इसके ऊपर कोई सो नहीं सकता. ओके, बट ये खुद भी सो नहीं सकती. ओके, इसका माउथ भी है बट ये कुछ खा नहीं सकती. सो व्हाट इज इट? इट्स अ रिवर. तो देखिए, रिवर क्या है? जब रिवर का पानी जो बहुत तेज फ्लो होता है तो रनिंग है, बट ठीक है, रनिंग वाटर बहुत तेज होता है कई बार फ्लो. ममर, पानी की आवाज भी आती है पानी के बहने की. ठीक है, कई बार जब एकदम शांत होती है नदी तो एकदम बेड की जैसे लगता है, तो बेड भी है लेकिन वो सो नहीं सकती. और रिवर में आप कुछ भी डालो वो उसके अंदर चला जाता है, तो उसका माउथ भी है बट ही कांट ईट. सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिवर. सो द आंसर फॉर द 5th वन इज रिवर, RIVER, दैट इज रिवर. ओके, so these are the answers from the first 5. Moving next to the 6th one. So 6th I will write here. 6th is, if I have it, I don't share it. If I share it, I don't have it. What am I? तो कहती मैं, अगर मेरे पास जब ये है, जब तक ये मेरे पास है, और जैसे मैंने इसको शेयर किया, किसी और के साथ बांटा, तो ये खत्म हो जाएगा. ओके, इफ आई हैव इट, अगर ये मेरे पास है तो मैं इसको शेयर नहीं कर सकती, और जैसे मैंने इसको शेयर किया ये खत्म हो जाएगा. सो व्हाट इज इट? इट्स अ सीक्रेट. अगर आपको किसी का सीक्रेट पता है लेकिन आपने वही सीक्रेट, अपने फ्रेंड का सीक्रेट किसी और को बता दिया, तो क्या वो सीक्रेट रहेगा? नो. ओके, सो इट विल बिकम गॉसिप. सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीक्रेट. SECRET, that is secret. Moving next to the 7th one. My 2-word name starts with P and ends with E, but I have thousands of letters. What am I? तो मैं 2 letter word हूँ, मैं 2 letters का word हूँ. ओके, मेरा फर्स्ट लेटर P से स्टार्ट होता है, सेकेंड लेटर E से स्टार्ट होता है, बट आई हैव thousands of letter inside. तो मैं 2 letters का ही वर्ड हूँ. मेरा फर्स्ट लेटर इज P, सेकेंड लेटर इज E, बट मेरे अंदर बहुत सारे लेटर्स है. सो दैट्स अ पोस्ट ऑफिस. सो देखिए, पोस्ट ऑफिस स्टार्ट्स विद P एंड विद E, और ये पोस्ट एंड ऑफिस 2 वर्ड से बना है. बट और पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लेटर्स, यहाँ पे हम चिट्ठियां, कौन सी लेटर से बात करें? चिट्ठियों की. और पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी चिट्ठियां होती हैं. सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी पोस्ट ऑफिस, POST, पोस्ट office, OFFICE, that is office. Moving next to the 8th one. Jenny mother had 3 children. Jenny की मम्मी के 3 बच्चे थे. The first was named April. First baby का नाम है April. The next was named as May. Second baby का नाम है May. What was the name of the third child? The third child का नेम क्या है? देखिए, जेनी की मदर के 3 बच्चे थे, April, May एंड थर्ड का नाम क्या है? जेनी की मदर. सो दैट मीन जेनी इज ऑल्सो द सन ऑफ हर मदर और डॉटर ऑफ हर मदर. ठीक है, तो जेनी भी तो अपनी मम्मी का बेटा, तो एक तो जेनी हो गया और उसके 2 ब्रदर सिस्टर्स हो गए, अप्रैल एंड मे. सो क्वेश्चन है, जेनीज मदर हैड 3 चिल्ड्रन. द फर्स्ट इज अप्रैल, सेकेंड इज मे, तो थर्ड कौन हुआ? खुद जेनी. सो द आंसर फॉर द 8th वन इज जेनी, JENNY, दैट इज जेनी. नाउ 9th वन. Can you name 3 consecutive days without using the word Wednesday, Friday and Saturday? क्या आप लगातार 3 दिन के नाम बता सकते हैं, लेकिन उन 3 दिन में ना वेंसडे आना चाहिए, ना फ्राइडे आना चाहिए, ना संडे आना चाहिए? तो बेटा आप वीक के कोई भी 3 डेज ले लीजिए, लेकिन उनमें किसी ना किसी में ये तीनों के तीनों आएंगे.
सो कौन से दिन हो सकते हैं जिनको हम तीनों बता सकते हैं लगातार? ना उसमें वेंसडे आ रहा है, ना उसमें फ्राइडे आ रहा है, ना उसमें संडे आ रहा है. सो दैट मीन्स yesterday, today, tomorrow. तो ये भी 3 दिन है, एक कल था, आज है और कल भी होगा. So yesterday, today and tomorrow. That is yesterday, today and tomorrow. TOMORRO. Okay. चलिए, so this is from 1 to 9. So बाकी जो है that we will do in the next session. So for today I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a great day.